Good morning, children. Yesterday we were studying preparation of alcohols. So today this is the third method from Grignard reagent. Grignard reagent क्या होता है बेटा? RMgX को बोलते हैं Grignard reagent, where R is the alkyl group. So you see this is R, इधर ऐसा लगा है C double bond O. What is C double bond O बेटा? This is added to the carbonyl group. ठीक है, तो एक एडक्ट बनेगा. एडक्ट मतलब क्या होता है? फॉर द टाइम बीइंग इट विल बी फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, दैट इज आर विल बी अटैच्ड हियर. यू सी हियर आर विल बी अटैच्ड हियर, ओ अपनी जगह पे है, MgX अटैच हो गया. ठीक है, सो दिस इज नोन एज एडक्ट. करेक्ट. नाउ आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हो गया, सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, दैट इज नोन एज एडक्ट, है ना. And then after hydrolysis it will give us the desired product, that is known as alcohol. Do you see? And MgOHX will be formed. Now we can be very clear with when we see the example. So propanone, ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है आपको. सो प्रोपेनोन प्लस ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आर देख रहे हो कितना बड़ा आर है, RMgX. करेक्ट. सो इट विल फॉर्म द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया था. आर इधर जो CH3 पहले से है वो लगा दिया हमने, ओ है ही है ये ओ, और MgBr. दिस इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड. नाउ आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट विल गिव अस द कंपाउंड. नाउ टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटा आपको? 1 2 और ब्यूटाइल वाले 4, 4 + 2 6. सो हेक्सेन 2 ऑल, बट सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल है, सो 2-methyl hexane 2 all will be formed. How to count? 1 2 3 4 5 6. इधर से काउंटिंग शुरू करोगे जिधर से पास है OH ग्रुप. ठीक है, तो 2-methyl, 2 पे मिथाइल आ गया, 2-methyl hexane 2 all प्लस MgOHX के बदले MgOHBr, because here Br was the halogen. Then comes second example, I will show you. CH3 CH2 MgBr, यानी RMgX. Do you see? This is Grignard reagent plus ethanol. This time we have taken CH3CHO. Ethanol उस बार हमने कीटोन से दिखाया. Here we are taking aldehyde CH3CHO. So again the intermediate compound will be formed, this. And after hydrolysis total carbon count कर लो, वो alcohol बन जाएगा. So total carbon is 1 2 3 and 4. So butane 2 all, 2 degree alcohol will be formed, 2 all, and MgOHBr. ठीक है. So this was the reaction with Grignard reagent. Similarly preparation of phenol. So from haloarine, children, this is haloarine, chlorobenzene plus NaOH. and इसमें 2-3 keywords हमें याद रखने हैं. In textbook also you note down please, it is not given there. At 623 Kelvin 300 atmosphere sodium phenoxide will be formed. ठीक है, ये सोडियम फेनॉक्साइड क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल. ठीक है, एंड विद व्हेन इट इज ट्रीटेड विद HCl it will give us phenol. This method of preparation of phenol is known as Dow process, and this is the actually industrial production of phenol. ये नोट कर लेना टेक्स्ट बुक में. Then from benzene sulfonic acid. Okay, so this is benzene. When it is treated with oleum, oleum क्या होता है बेटा? H2SO7, fuming H2SO4. Do you remember? So benzene sulfonic acid will be formed, SO3H लगा दिया. When it is treated with NaOH in presence of H plus ion, it will give us phenol. Correct? So we can see here benzene sulfonic acid से अब यहाँ phenol बनने का एक reaction है, that is perhaps not given in the book. So we will see here benzene sulfonic acid treated with NaOH. It will form सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, SO3H के बदले H is substituted with Na. So sodium benzene sulfonate will form, and now it is treated with NaOH, so it will give us sodium phenoxide. और सोडियम फेनॉक्साइड जैसे मिला फिर उसको एसिड से ट्रीटमेंट करके फिनॉल विल बी फॉर्म्ड. सो दिस इज द रिएक्शन टू प्रोड्यूस द फिनॉल. थर्ड वन इज we know aniline when treated with NaNO2 and HCl it will give us. ये कंपाउंड का नाम कितनों को याद है? कहाँ पढ़ा था हमने? सैंडमियर रिएक्शन, N2Cl BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, and then it is heated or with H2O
वार्म किया, और डाइल्यूट एसिड, सो इट विल गिव अस फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl. ठीक है. सो ये यहाँ तक का स्टेप याद है सबको. BDC सबको पता था. BDC नाउ ट्रीटेड विद वार्म और डाइल्यूट एसिड, देन इट विल गिव अस फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl. राइट. देन कम्स एक अच्छी इंटरेस्टिंग मेथड है, दैट इज़ फ्रॉम क्यूमीन. क्यूमीन क्या होता है बेटा? एक्चुअली क्यूमीन किसका नाम है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन. यू सी बेंजीन के ऊपर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो इट इज़ नोन एज सेकेंड पोजीशन से अटैच है, सो इट इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजीन. दिस क्यूमीन व्हेन ट्रीटेड विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ 5% Na2CO3, उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो इट विल गिव अस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. 2 ऑक्सीजन अटैच हो गए, दिख रहा है आपको? CH3COOH, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. एंड नाउ इट इज़ इन एसिडिक मीडियम, इट विल गिव अस फिनॉल प्लस जो बचा हुआ है दैट इज़ प्रोपेनोन. दिस प्रोपेनोन, इसका कॉमन नेम इज एसीटोन, वी नो. सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ध्यान रखना. क्यूमीन मेथड इज highly gives us highly pure phenol with low cost. 2 years back बोर्ड में क्वेश्चन था, गिव द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल विद by for getting highly pure phenol with low cost, and cumin method was not mentioned. So here you have to remember this point. Then what are the physical properties of alcohol and phenol? The boiling point of alcohol and phenols increases with the increase of number of carbon atom. Easy है. With increase in ब्रांचिंग से क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वंडर वाल फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा. सो बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो डिक्रीज. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन. इनसे ज़्यादा होता है. क्यों? बिकॉज फिनॉल्स में because presence of intermolecular hydrogen bonds are present in alcohol and phenol. हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से the bonds become stronger and so boiling point will increase. Solubility of alcohol and phenols in water is also same way. हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं, but solubility will decrease when thus there is increase in size of alkyl or aryl. क्यों? Because alkyl and aryl groups are hydrophobic in nature. So the more number of alkyl or aryl group, the less solubility will be there. Okay. Now we will come for the chemical reactions. So chemical reactions, may first one we will read, that is reaction involving cleavage of OH bond. So reaction with metal. They react with sodium, potassium or aluminum like metals, है ना, and they form the alkoxide, और अगर बेंजीन रिंग है तो फेनॉक्साइड. ठीक. So 2ROH plus 2Na will give RONA, that is known as sodium alkoxide. Alkyl group attached to sodium alkoxide plus H2. Let us be clear with this example. Here it is given CH3CH3OH plus 2 aluminum. ठीक है, एल्यूमिनियम बैलेंस करने के लिए 2 लगाए. सो हियर यू विल सी, अब एल्यूमिनियम लगाए ना बेटा, तो हियर सोडियम के बदले एल्यूमिनियम लिख दो. एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. दिस कंपाउंड अगर तुम ध्यान से देखो तो CH3 थ्राइस है ना, तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल. कैन यू सी? टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल. सो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, it will give us aluminum tertiary butoxide plus H2. Similarly, phenol plus Na will give us sodium phenoxide. अभी हमने पढ़ा था ONA लगा दो तो sodium phenoxide plus H2. Phenol when treated with NaOH, it will give us sodium phenoxide, salt बनाया, plus H2O. यानी ये सारे रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर. क्लियर? देन कम्स एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स. अब एसिडिटी है तो ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड. OH बॉन्ड कैसा बेटा? पोलर बॉन्ड्स है, पोलर है ना, पोलरिटी है. सो एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, 2 तरह के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. So electron releasing group like CH3, C2H5 and on
दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन, सो डेंसिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन पे, सो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेज. When polarity will decrease, so acid strength will also decrease. So जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, उतनी उसकी एसिडिटी लेस होगी. तो अगर 3 कंपाउंड हैं, देखो यहाँ ध्यान से, तो RCH2OH, तो एक ही R है, ठीक है, तो इट विल बी हाईली एसिडिक इन कंपैरिजन टू 2 R है, तो 2 R विल गिव मोर इलेक्ट्रॉन. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो पोलैरिटी डिक्रीज होगी, पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो एसिडिटी डिक्रीज होगी. सो मोर एसिडिक, देन लेस एसिडिक, एंड देन लीस्ट एसिडिक. दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, and this is tertiary alcohol. Let me write here tertiary alcohol. You see 3R are there, so 3 electron donating groups are there, yeah, electron releasing groups are there, so they will give more electron. Due to more electron density on oxygen atom, the OH bond की polarity less हो जाएगी, and OH bond की polarity ही responsible acidic character के लिए, so it will be least acidic among these 3. But ध्यान रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, नोट यहाँ लिख दो, नोट for MCQs. H2O is a better proton donor, so it is stronger acid than alcohol. ये ध्यान में रखना, H2O is stronger acid than alcohol. Now if you see the example here, RO plus H2O, H2O के ऊपर आपको दिख रहा है lone pair of electron, so conjugate acid and conjugate base will be formed. ये बात पॉइंट तुम ध्यान में रखना. Then acidity of phenols. Phenols react with metals like sodium, aluminum, अभी हमने देखा ना, sodium phenoxide and all they form, and NaOH also. So it indicates that phenols are also acidic in nature. मेटल से रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है, देन NaOH बेस से रिएक्ट करता है, सो इट इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. Aqueous solution of phenol turns blue litmus into red. That means it is acidic in nature. Their acidic तो हैं, बट कैसे एसिड हैं? वीक एसिडिक नेचर, ठीक है. सो पोलर OH बॉन्ड, अगेन OH bond polarity is responsible for acidic character. So what will be here? You see carefully. This is the resonance structure. What we see here, electron move here, correct? तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होगा बेटा, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन सब यहाँ मूव हो गए, ओके. सो एंड फिर बाकी चीज़ें ऐसे हैं. नेक्स्ट स्टेप में रेजोनेंस स्ट्रक्चर यू सी. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो गया था ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, दिख रहा है सबको, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा. सो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है. फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कॉर्नर पे आया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप में यू सी डबल बॉन्ड इज हियर. अब 6 से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये यहाँ पे आ गया था, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया. देन व्हाट वी सी हियर, ये जो इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया था, दिस हैज़ मूव टू दिस, सो हियर डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड इन द नेक्स्ट स्टेप, ओके. Then this pi electron will move to this corner junction, this. So what will happen here, electrons will be there, so you see electrons are there. Next step में you see finally this is the structure of phenoxide ion, that is यहाँ double bond, ये पहले से था, ये यहाँ था, and this has moved here, so here double bond is formed, and finally this electron has moved to oxygen back, so this is formed.
इसी वाला हो गया।